Points that I've noted down that you must get admission from a SEVP certified US यूनिवर्सिटी और कॉलेज. ठीक है, तुम चेक करोगे कि वो क्या वो SEVP सर्टिफाइड है कि नहीं है. सो MIT इज़ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी कैम्ब्रिज में है. ठीक है. This is known for, it's popularly known for engineering and the CS, computer science. Its rating is 5 stars. Hey guys, welcome to my next video. This video is regarding the country-wise segregation for the student visas. As I promised you in my last video that I'll be making a video based on the countries. So guys, as promised, I have made this for the country America, which is United States, and also known as USA. Now in this video guys, we'll be discussing about the student visas to be applied for United States, which is also known as F1 visa. So great, so I've made some note for you guys, and I think this is going to be a long video because guys notes इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब मैंने 5-6 पेजेस तो हैं गाइस इसमें. ठीक है, so let's begin with the video guys. This is more of an informational video guys. This is a video which will be helping the Indian students to apply visa for the USA. What are the pre-checks that you need to do? And all the pre-checks I have filtered out step by step for the Indian parents who are concerned about their kids to go outside, and for the Indian students as well. So in this video guys, we will discuss about the research and admission. We will discuss about the visa type and the purpose. We'll discuss about the documentations required for the process. We'll also discuss about the step-by-step visa process. Okay, step by step. Also, I'll discuss about what happens at the visa interview, financial planning the parents or the kids should do, and the proof of the property, the money that they have, financial proof. We'll also speak about the post-visa approval, what students and parents should know. Like once the visa gets approved, what all you should do, what all you should be prepared for. उसके बाद क्या करना होता है वो सब भी है इसमें वीज़ा के अप्रूवल के बाद का process. Also we'll discuss about the work while studying. Like, a lot of students, they work while studying in outside India to pay their student fees, the tuition fee or the living cost. We'll discuss about the healthcare in the country USA. We'll discuss about the culture and the lifestyle, safety. We'll discuss about the parental concerns that they have and the advice for them. And we'll also discuss about the common challenges faced by the students in that country. Okay. Great. So guys, let's begin with the first part, which is for the USA undergraduate student visa known as F1. And this is from the perspective of Indian parents and students. So before you apply, you do the research and the admission, like what all you should do and everything. तो वो मैंने एक बारी रिसर्च करके तुम्हारे लिए सारी मैंने यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लिख दी हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Alright guys, excuse me. Okay. So guys, first is the process to choose a university. तुम यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे पहले, and the course, that is very important. तो few points that I've noted down that you must get admission from a SEVP certified US यूनिवर्सिटी और कॉलेज. ठीक है, तुम चेक करोगे कि वो क्या वो SEVP सर्टिफाइड है कि नहीं है. Second is that many colleges require SAT, SAT or ACT scores for the undergraduate admission. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है तुम्हें. Then you have English proficiency tests like TOEFL or IELTS, IELTS, which I've talked about in the previous video. You can, if you haven't watched that guys, you can go and watch the previous video as well for that clarity. What is IELTS and how do you clear it? ठीक है, तो ये तो mandate है guys. English proficiency test जो है वो mandate है. And then check other alright, ठीक है.
Now the fourth point would be universities send you form I-20, I-20. This is the certificate of eligibility for non-immigrant student status after admission. So once you're enrolled in the university or the course, right, they do send you the form I-20, which is the certificate of eligibility for non-immigrants. ठीक है, तो उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है. ये 4 चीज़ें हैं, just make sure इन सबको तुम्हें ध्यान रखना है. Cool. All right. आई थिंक द लेबर वर्क हैज स्टार्टेड अगेन गाइज. तो बीच बीच में पॉज करता रहूँगा वीडियो, जब भी ज़्यादा आवाज़ आएगी तो जस्ट पे विद मी. थैंक यू. सो नाउ लेट्स बिगिन विद यूनिवर्सिटी नेम्स. आई हैव filtered out the universities based on the names or location, what it is known for, कि कौन से कोर्सेज के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ नोन है और तुम्हारी उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स कितनी है. तो मैंने स्टार के हिसाब से रेटिंग्स डिसाइड करी है. ठीक है, तो जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है गाइस, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो भी अच्छी है वहाँ की, वो सब मैंने सारे फिल्टर आउट कर लिए हैं. Cool. All right, so perfect guys, let's begin with the universities. In between guys, if you hear any noise, right, it is a labor working in the neighboring, in my पड़ोसी वाला घर. ठीक है, तो ना excuse me for the sound. I'll try to edit those sounds. अगर हो सकते हैं पूरे तो, otherwise तुम्हें पहले बता रहा हूँ. ठीक है, great. So let's begin with the universities guys. So first we have okay, couple of universities guys. So I'll just begin with topmost, which is the MIT. So MIT is the Massachusetts Institute of Technology, जो कि आपकी कैम्ब्रिज में है. ठीक है, this is known for, it's popularly known for engineering and the CS, computer science. Its rating is 5 stars, right, of course. Now then we have the Stanford University in the second rank, which is in the Stanford, and it is known for the engineering, business courses and sciences. Okay, and this is also 5 stars. Then we have University of California in Berkeley. This is known for the engineering, business and the arts. Okay, engineering, business and the arts. Rating is of course 5 stars. ठीक है guys. Then we comes University of Illinois. University of Illinois guys, which is in Urbana in Illinois, the location. It is known for engineering and the computer science. The rating is 4 stars. Now guys, 5 stars being the excellent and the 4 stars being very good. ठीक है, इस हिसाब से मैंने किया है. Then we have the University of Michigan. It is in Arbor, Michigan. It's known for engineering, business, health, 4 stars. Then we have the New York University. It's in New York, of course. Now it's known for the arts courses, business courses and the law. So law करनी है यहाँ से तो यहाँ कर सकता है. Rating is 4 stars. Then we have the University of Texas in Austin. It's known for engineering and business. It's 4 stars. We have University of Southern California, USC. It's located in LA and Los Angeles. It's basically for the films, engineering and business. बहुत लोग फिल्म के कोर्सेज करने जाते हैं, राइट. इसको डायरेक्शन में आना है या प्रोडक्शन सीखनी है, बहुत चीज़ें होती हैं, एक्टिंग कोर्सेज होते हैं, तो वो सब यहाँ पे आ सकते हैं if they have a very good budget. Rating is 4 stars. We have then University of then we have Purdue University. Sorry for the pronunciation if it's wrong. It is known for the engineering and the agricultural courses. Rating is 4 stars. Then we have University of Washington. It's located in Seattle, Washington, and it's known for the computer science courses and engineering courses. Because engineering बहुत ज़्यादा colleges offer कर रहे हैं US में, which is a good thing, और वहाँ की अच्छी वैल्यू होती है. University of Washington is 4 stars guys. ठीक है, तो ये तो तुम्हारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस. ठीक है, विच इज़ सर्टिफाइड बाय जो SEVP होता है ना. ठीक है, सेकेंड या तो इट्स सर्टिफाइड बाय SEVP. तो गाइस SEVP क्या होता है? इट इज़ स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम.
नाउ एक ये बॉडी है गाइस, इट्स ए यूएस डिपार्टमेंट की, एक तुम्हारी होमलैंड सिक्योरिटी की बॉडी होती है, जो DHS है वो मैनेज करता है इसको. नाउ दिस जो मैनेज करता है, दिस मैनेजेस द स्कूल्स एंड नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स, जिसका F&M वीज़ाज होते हैं. ठीक है, F वीज़ा मतलब जो होते हैं एकेडमिक और लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं F वीज़ा में. आपके M वीज़ा स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे हैव वोकेशनल एंड नॉन अकेडमिक प्रोग्राम्स. ठीक है, तो होता क्या है कि सिर्फ जो SEVP स्कूल्स होते हैं ना, वही तुम्हारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं. तो फिर तुम चेक कर सकते हो यार कि मेक श्योर टू चेक कि SEVIS वो है कि मतलब उसमें है कि नहीं है, राइट. SEVP और इसमें कन्फ्यूज मत हो, SEVP ऑपरेट्स थ्रू दी SEVIS डेटाबेस. ठीक है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन तुम्हारी मेंटेन रहती है, तो सेफर साइड के लिए सही रहता है. इट्स मैंडेट थिंग. ठीक है, तो मैंने कहा था कि बहुत कॉलेजेस में SAT और ACT स्कोर्स भी देखते हैं. तो SAT स्कोर्स तुम्हारे जो होते हैं, बेसिकली SAT और ACT तुम्हारे एग्जामिनेशन होते हैं. SAT जो होता है तुम्हारा डिजिटली एग्जामिनेशन होता है, जो ACT होता है तुम्हारा डिजिटल भी होता है और तुम्हारा पेपर वाला भी हो सकता है. पेपर से जो लिखते हैं वो वाला भी होता है SAT और ACT में. तो SAT जो होता है दैट इज़ स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, एंड ACT इज़ योर अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग. ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली इसमें रीडिंग और राइटिंग को तुम्हारा टेस्ट करते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, योर वोकैबुलरी, मैथ्स भी होता है इसमें, अलजेब्रा वगैरह पूछते हैं. थोड़ा पढ़ के जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होते हैं, क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस होता है, एडवांस मैथ्स भी हो सकती है इसमें. ठीक है, तुम्हारा SAT में, अब SAT में तो स्कोरिंग है तुम्हारी 400 नंबर से 1600 नंबर की स्कोरिंग होती है. कंबाइंड स्कोर होता है तुम्हारा, जैसे कि मान लो 400 कंबाइंड स्कोर है, तो रीडिंग, राइटिंग प्लस मैथ, ये होता है SAT में. तो इट्स मोर फोकस्ड ऑन रीजनिंग, एविडेंस बेस्ड रीडिंग, राइट, एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अगेन कमिंग बैक टू द प्रेजेंस ऑफ माइंड. ACT जो है तुम्हारा अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, इसमें तुम्हारे सेक्शंस होते हैं अलग अलग, लाइक इंग्लिश हो गया, ग्रामर और यूजेज पे तुम्हारा टेस्ट करते हैं. मैथ्स में तुम्हारा सेम लेवल ऐसे SAT होता है इसमें भी, बट इसमें तुम्हारे थोड़ा एडवांस टॉपिक्स होते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पूछ सकते हैं, इसमें पूछते हैं ACT में. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आती है. साइंस में तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, साइंटिफिक रीजनिंग होता है. ठीक है, बस बाकी ऐसे राइटिंग ऑप्शनल होता है. स्कोरिंग इसमें तुम्हारा होता है 1 से 36 तक. इट इज़ एवरेज फॉर ऑल द सेक्शंस. ठीक है, तो जो तुम्हारा ACT है थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा डिफरेंस ये है, तुम्हारा ACT थोड़ा फास्ट पेस्ड है और इट्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बट मोर ऑफ देम इन लेस टाइम. ये होता है, थोड़ा आसान से क्वेश्चन होंगे बट तुम्हारा थोड़ा कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, राइट. दैट इज़ ACT. तो बस यही है. तुम्हें दोनों नहीं लेने, तुम्हें दोनों में से कोई एक ले सकते हो. ठीक है, तो यही सब है गाइस. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. नाउ देयर सम टिप्स that I've observed that you can practice while choosing your university. So I've written 5 tips guys. The first one is to consider the course curriculum and faculty experience. अब तुम जाओगे वहाँ पे, तुम्हारा करिकुलम क्या है उस कोर्स का वो चेक करो, वहाँ पे फैकल्टी सही है कि नहीं है. तुम देखते हो ना, टीचर्स अच्छे होने चाहिए. व्हाट इज़ एक्सपीरियंस, राइट, और लाइक द रिव्यूज़, वहाँ के बच्चों से थोड़ी बात करने का ट्राई करो, राइट, थ्रू सम सोशल मीडिया. तो वो सब आजकल तो सबके दोस्त वगैरह यहाँ उधर उधर होते ही हैं. सेकेंड टिप इज़ टू लुक एट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तुमको चेक करो, हिस्ट्री चेक करो, कहाँ का प्लेसमेंट उनकी हुई है, सही हुई है नहीं हुई है. उनके बाद कॉलेज के बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, ये सब तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी बिफोर डिसाइडिंग द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज और द स्कूल, वट एवर. नाउ थर्ड इज़ टू चेक द लोकेशन. तुम्हारे बहुत कॉलेज वहाँ पे अर्बन एरिया में होते हैं, बहुत कॉलेज तुम्हारे गांव के एरिया में भी, सबर्ब्स में होते हैं, राइट. नॉट अर्बन मीन सबर्ब्स एरिया में होते हैं कैंपस. तो वहाँ का क्लाइमेट तुम देख लो, सेफ्टी देख लो है कि सही है कि नहीं है. USA का बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे क्लाइमेट वेरी करता है हर स्टेट के हिसाब से. तो सोच समझ के जाओ, डिसाइड करो कहाँ जाना है. फोर्थ टिप इज़ टू कंसिडर द कॉस्ट विच इज़ द ट्यूशन फ़ी, लिविंग एक्सपेंसेस. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. सबसे ज़्यादा जो महंगी पैसे जाते हैं ना तुम्हारे पेरेंट्स के या तुम्हारे, भाई वो जाएंगे ट्यूशन फ़ी में.
और लिविंग एक्सपेंस। सबसे ज़्यादा महंगी होती है ट्यूशन फ़ी। बहुत बंदे वहाँ पे काम करके वो कैसे ना कैसे निकाल लेते हैं, बट लिविंग एक्सपेंस भी तुम्हें बेयर करना पड़ेगा। पहले साल का तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना गाइस, सेविंग से ही करना पड़ेगा। फिफ्थ टिप इज गाइस टू चेक इफ़ द यूनिवर्सिटी हैज स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो वो भी चेक कर लो। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, राइट, कि तुम्हें फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा फॉर द यूएसए में तुम्हारे कोई यूनिवर्सिटी को एवेल्युएट करने का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड। तुमने यूनिवर्सिटी एवेल्युएट कर ली, ठीक है, अब उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे वीज़ा टाइप क्या है तुम्हारा और तुम्हारा पर्पज़ क्या है। जैसे कि मैं सब बना रहा हूँ F1 वीज़ा के लिए, तो F1 वीज़ा इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड इट इज़ फॉर फुल टाइम एकेडमिक स्टडी ओनली। ठीक है, फुल टाइम एकेडमिक स्टडी के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा तुम्हें मिलता है विच इज़ नोन एज F1। ड्यूरेशन इज इट कवर्स द एंटायर स्टडी पीरियड प्लस अ 60-day ग्रेस पीरियड आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, ये तुम्हारा ड्यूरेशन है उस वीज़ा का। देन थर्ड स्टेप इज गाइस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर F1 वीज़ा एप्लीकेशन आई विल टेल यू, आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। फर्स्ट इज गाइस वैलिड पासपोर्ट तुम्हारा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months आफ्टर योर इंटेंडेड अराइवल। ध्यान रखना हमेशा, तो तुम्हारी इंटेंडेड अराइवल डेट है ना, उससे 6 महीने एक्स्ट्रा होना चाहिए वीज़ा का मिनिमम जो वैलिडिटी है। फॉर्म I-20 विच इज़ इशूड बाय द US स्कूल आफ्टर द एडमिशन वो होना चाहिए। DS-160 कॉन्फर्मेशन पेज, ये तुम्हारा इट इज़ कम्प्लीटेड ऑनलाइन, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, DS-160, ये तुम ध्यान रखो इस चीज़ का। फिर तुम्हारी फ़ीस जो लगती है SEVIS फ़ी रिसीट आती है तुम्हारे पास, तो तुम पे करोगे ना बिफोर द वीज़ा एप्लीकेशन, ये तुम पे करोगे विच इज़ $350। एज ऑफ 2025 तुम्हारा यही है 350। अगर मैं $US को INR में कन्वर्ट करता हूँ ना एज ऑफ टुडे, तो इट इज़ कमिंग अराउंड 30,898 रुपीज़, तो अराउंड 30,000 रुपये। ठीक है, 30-31,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। फिर तुम्हारा वीज़ा अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन। तुम्हारा जो वीज़ा अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन होता है ना, कि तुम्हारा जब वीज़ा से वहाँ से आता है कॉन्फर्मेशन की, इट्स अ प्रूफ ऑफ शेड्यूल इंटरव्यू डेट, तुम्हारे इंटरव्यू की ये लोकेशन ही है वो सब। देन योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ फाइनेंशियल एविडेंस। गाइस फाइनेंशियल एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे फाइनेंशियल एविडेंस में तुम्हें शो करने पड़ेंगे उनको, भाई कि देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, तभी मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगी इंडिया में। तो यू हैव टू शो दिस टू द इमिग्रेशन ऑफिसर्स। जब तुम्हारा इंटरव्यू भी होता है ना, तो गाइस वहाँ इंटरव्यू में तुम्हारा इंटेंट चेक करते हैं, इंटेंट टू स्टडी फॉर द कोर्स एंड इंटेंट, एंड दे चेक योर फैमिली रिलेशन, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, योर बाइंडिंग्स विद द कंट्री, राइट। वो चेक करते हैं तुम्हारी बाइंडिंग्स अगर स्ट्रॉन्ग है, कि तुम भाई वहाँ जाके वहीं तो नहीं बच जाओगे, तुम वापस तो आओगे ना, समझ रहे हो। तो वो मेन इंटेंट होगा ये होता है चेक करने का। तो फाइनेंशियल एविडेंस में क्या है गाइस, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं पहली बात तो। सो इट शोज़ द फंड्स फॉर एटलीस्ट 1 year's ट्यूशन प्लस लिविंग एक्सपेंस। बैंक स्टेटमेंट में तुम दिखाओगे कि इतने फंड्स हैं, इतने ये हैं, प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट्स तुम्हारे नाम पे हो सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे पेरेंट्स के नाम के भी हो सकती हैं। ठीक है, स्टूडेंट हो तो बच्चों के कहाँ होते हैं बैंक स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, थिंक आई एम गेटिंग ग्रेट। सॉरी गाइस, एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए आई हैड टू टेक दैट कॉल। Perfect. So we were on the financial evidence, bank statements showing funds for at least 1 year's tuition fee plus the living expense. Sorry. तो तुम्हारे मैंने बताया कि पेरेंट्स के भी हो सकता है स्टेटमेंट्स बैंक के। फिर है तो तुम्हारा अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर्स इफ एप्लीकेबल। देन योर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड और द स्पॉन्सर्स। ठीक है, एफिडेविट बनवा लो एक पेरेंट से कि हाँ वी सपोर्ट द किड टू गो आउटसाइड। देन कम्स योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तुम्हारी मार्कशीट, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th and 12th। ठीक है, तुम्हारे ग्रेड्स जो भी हैं, द ग्रेड फॉर द 10th and 12th इंक्लूडिंग योर मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट्स। देन कम्स योर स्टैंडर्डाइज टेस्ट विच इज़ एज आई मेंशन अबाउट द SAT और ACT जो हमने डिस्कस किया था पहले, याद है वो वाला, उसके स्कोर्स चाहिए होते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। एंड योर IELTS तो मैंडेट है ही गाइस, तुम्हारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स आर मैंडेट, बी इट TOEFL और बी इट IELTS।
पासपोर्ट फ़ोटोज़ गाइज एज़ पर द यूएस वीज़ा स्पेसिफिकेशंस चेक करना एम्बेसी वेबसाइट पे कितनी क्या होती हैं. टाइज टू इंडिया, ठीक है. नाउ टाइज टू इंडिया जब मैंशन पहले तो मैं बताया था मैंने, द इमिग्रेशन ऑफिसर विल चेक योर टाइज टू इंडिया, विच मीन्स क्या? दिस मीन्स that you proof the proof regarding that you intend to return India after studies to your home country after studies. So इसमें चेक करेंगे तुम्हारे फैमिली के प्रॉपर्टीज़ पेपर्स, लैंड, घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये सब चीज़ें चेक करते हैं तुम्हारे. सो टाइज टू इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे इमिग्रेशन इंटरव्यू में भी तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है चीज़, ठीक है. इस इंटेंट में तुम्हें वो काम करना है, मतलब इंटरव्यू देना है कि तुम यू शो टू द वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर कि भाई, सॉरी जो वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, कि भाई तुम्हारा इंटेंट इज टू रिटर्न बैक टू इंडिया वंस यू आर डन विद द कोर्स, ठीक है. देन कम्स योर गाइज, ओके, देन कम्स स्टेप 4 विच इज़ द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस. ये तुम्हारा मेन पार्ट है. तो तुम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए तुम्हें वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है. हाउ डू यू अप्लाई द वीज़ा? फर्स्ट स्टेप इज़ टू पे द SEVIS फी, ठीक है. जो तुम यू हैव टू विजिट टू, पहले तुम जाओगे वेबसाइट में, तो बैठोगे, कंप्यूटर खोलोगे, लैपटॉप खोलोगे, यू विल बी विजिटिंग fmjfee.com, ठीक है. fmjfee.com, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा लिंक, या मैं ऊपर यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है. यू हैव टू पे $350, जो हमने कन्वर्ट किया था अराउंड 30,000 रुपीज़. प्रिंट द रिसीट, ठीक है. मैंडेटरी फॉर वीज़ा इंटरव्यू है, इट्स मैंडेटरी फॉर वीज़ा इंटरव्यू. दैट्स अ फर्स्ट सब स्टेप. Second sub step comes complete form DS-160. Now you can fill this form online at ceac.state.gov/ceac/. I'll paste the link यहाँ पे, तुम देख लेना. फिल किए वाला फॉर्म DS-160, you upload the photo as per their specifications. You save the DS-160 confirmation number for the appointment booking. Confirmation number अपने पास रखना है याद से. Send an email to yourself, ऐसा कुछ. Now comes the third sub step, guys, which is schedule the visa interview. Now you create a profile and pay visa application fee. तुम्हें visa application fee भी pay करनी पड़ेगी, which is approximately $160, ठीक है. And you can do it on the ustraveltalks.com. Link भेज दूंगा मैं. $160, guys, is how much? Let's see. $160, if we convert that to INR, so it will be 14,000 rupees, guys. 14,000, 14,000 से 14,500, 14 to 14.5, ठीक है, इतनी होती है. Then once you pay the visa application fee, then you book the interview at the nearest place. Usually तुम्हारे डेली मेजर सिटीज़ में ही होते हैं वाले, which is जो स्मॉल टाउन में रहते हैं गाइज, तो यू हैव टू ट्रैवल. जैसे मेरे रिलेटिव्स में भी, जैसे मेरे अभी ताऊ जी गए थे US, तो ही हैज़ टू ट्रैवल टू दिल्ली आए थे मेरे पास, वहाँ से दे हैव टू गो टू दी एम्बेसी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है. तो इसके मेजर सिटीज़ में तुम्हारे ऑफिस होते हैं, दिल्ली में होता है गाइज, मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, ठीक है. देन द सब स्टेप 4 इज़ प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. So you organize all the documents neatly in a folder. Practice common interview questions. ठीक है. Common interview questions क्या होते हैं मैं तुम्हें आगे बताऊंगा. Don't worry. Then comes the step 5, which is attend the visa interview. Now you arrive early with the documents. जल्दी पहुंच जाना वहाँ पे. And be honest, guys. Just clear in your answers. ठीक है. That is what matters. Be honest. Show your intent. ठीक है, कि मैं वहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, एंड वहाँ पे पढ़ के मैं वापस आ जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं रहने वाला, वहाँ बसूँगा नहीं मैं, ठीक है. दे चेक दिस. बी ऑनेस्ट एंड क्लियर इन योर आंसर्स, एंड एज आई मेंशन गाइज, इंटरव्यूअर्स विल एक्सेस योर इंटेंट टू स्टडी, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टाइज टू इंडिया. हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, दे विल चेक what is your intent, is there do you have the intent to study over there, do you have a strong ties to India, कि तुम वापस आने वाले हो, तुम्हारी फैमिली यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, तो दे विल assess this as per the process. Now comes the step 6, which is visa approval. So if approved, the visa is typically issued within 1 to 2 weeks.
1 से 2 हफ्ते में वीज़ा तुम्हारा आ जाएगा, बट इफ़ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड इट में टेक लॉन्गर, जो कि लग जाता है। सो अब तुम्हें मैंने बताया है कि कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं वीज़ा इंटरव्यू में। सो कॉमन क्वेश्चन का इज लाइक वाई डू यू वांट टू स्टडी इन USA ओनली, वाई नॉट सम अदर कंट्री। इसका थोड़ा प्रिपेयर कर देना। इफ़ यू नीड मोर एडिशनल वीडियो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, यू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक न्यू वीडियो। Second question they can ask is why this university or why this course, checking your intent to study, read about the course, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या पढ़ने जा रहे हो guys। How will you find your education, how will you fund your education, वो पूछेंगे। Financial, what are your plans after graduation, how is your family supporting you, do you have any relatives in USA। So you just have to be honest in the answers. Show strong ties to India, strong relationship with family, have a clear understanding of your course and the university you're going to। ठीक है, ध्यान रखना गाइस इसका। Then guys comes financial planning. The next step is financial planning and proof। तो तुम US अंडर ग्रेजुएट तुम पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर US अंडर UG कोर्स करोगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, दे आर एक्सपेंसिव इन US गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ द ट्यूशन फी इज एक्सपेंसिव, द लिविंग कॉस्ट इज एक्सपेंसिव इन US, मजाक नहीं है गाइस, ठीक है। तो दिस विल रेंज फ्रॉम $30,000 to $60,000 पर ईयर। US का लिविंग कॉस्ट इज, आई टेल यू, द ट्यूशन फी प्लस द लिविंग एक्सपेंस इज 26 lakhs। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 26 लाख से लेके 52 lakhs तक जाता है। 1 साल का वहाँ का खर्चा तुम्हारा रहने का ही और ट्यूशन फीस का मिला के 26 लाख से लेके 52 lakhs का खर्चा होगा। तो मेक श्योर गाइस फर्स्ट ईयर की एटलीस्ट सेविंग तो होनी चाहिए तुम्हारे पास। 26 लाख से लेके 50 लाख का सेविंग तुम रखो अपने पास। इतनी सेविंग्स तुम्हारे पास है, 30 लाख 40 लाख पड़े हैं सेविंग्स, तो ही जाओ, ठीक है। फाइनेंशियल प्रूफ मस्ट बी सॉलिड, चेक होता है, वेरीफाई होता है सब कुछ गाइस, लाइक द बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स। बैंक स्टेटमेंट्स आई मेंशन पेरेंट्स के नाम पे भी हो सकता है। स्कॉलरशिप लेटर्स इफ एप्लीकेबल और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स और द स्पॉन्सर्स। नाउ प्रिपेयर यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर। एज आई मेंशन गाइस, पहले साल के लिए तुम्हें एक बजट प्लान बनाओ कि भाई इतना मेरा बजट है, इतने टाइम में वहाँ पे रहूँगी, इतना मैं लिविंग एक्सपेंस है, खाने का खर्चा इतना है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग होगा, रेंट का अलग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है वहाँ, तुम्हारा टाइम कैब नहीं करोगे, और तुम्हारे ग्रोसरीज का क्या है, सब कुछ मिला होगा। जिम जा रहे हो उसका अलग होता है, ठीक है, कुछ फिटनेस कर रहे हो या और क्या होता है, खाना बनाना आना चाहिए, स्किल्स बेसिक लाइफ स्किल्स तुम्हें आनी चाहिए, खाना बनाना, सफाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, वहाँ नौकर नहीं होंगे गाइस, सब कुछ खुद, कपड़े खुद धोगे, सब कुछ खुद करना पड़ता है, ठीक है। Step 7 guys, post visa approval, which is once the visa is approved. So it is good to know information for students and the parents कि before departure guys, book accommodation, तुम ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस बुक अकोमोडेशन वहाँ बुक कर लोगे, डिपार्चर के पहले बुक करना है। अरेंज द एयरपोर्ट पिकअप और ट्रांसपोर्टेशन जो तुम कर ही लोगे। ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लेना, अब टू बी ऑन अ सेफर साइड। और तुम्हारे प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस भी होते हैं, वो तुम ढूंढ सकते हो, हमसे लिंक्स मिल जाएंगे तो तुम वो अटेंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो दे गिव यू द जस्ट ऑफ इट, द आइडिया ऑफ इट, हाउ इट इज़ टू गो टू दैट कंट्री, राइट। ओके, नाउ कम्स गाइज द अराइवल। सो तुमने अराइव कर लिया यूएस में भाई, तो एट द यूएस कस्टम्स, वहाँ पे कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा वो I-20 फॉर्म चेक करेंगे, ठीक है, और वीज़ा चेक करेंगे तुम्हारा। तो I-20 फॉर्म याद है तो मैं जो पहले मैंने बताया था वो तुम्हारे पास होना चाहिए, प्लस वीज़ा होना चाहिए। नाइन गेट योर I-94 फॉर्म, वहाँ से एंट्री रिकॉर्ड होता है तुम्हारा, I-94 फॉर्म मिलता है। मेंटेन द स्टूडेंट स्टेटस, वहाँ पे यू हैव टू रजिस्टर टू द कॉलेज, क्लास में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन करके रखना वहाँ पे। अब वहाँ पे ना मैं बताता हूँ तुम्हें कंसर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। पहली बात तो तुम अलग अकेले रहते हो वहाँ पे अकेले रहोगे, तो लिविंग अलोन कंसर्न्स हैं तुम्हारे कुछ, विच इज़ यू कैन कनेक्ट विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसेस। कॉलेज में जहाँ तुम जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऑफिसेस होते हैं अलग अलग, स्टे कनेक्टेड विद देम टू बी ऑन अ सेफर साइड।
पेरेंट्स कैन स्टे इन टच विया कॉल्स और द वीडियो, ठीक है। ध्यान रखो बच्चे का, बात करो, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स की एसोसिएशंस भी हैं वहाँ पे, तो बी ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो यू डोंट फील एलिनेटेड इन फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री। और बजटिंग और सेफ्टी अवेयरनेस ध्यान रखना गाइज। अब तुम्हारा मेन पार्ट आता है वर्क वाइल स्टडिंग। तुम वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ में तुम्हें काम भी करना है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, खर्चा निकालना है रहने का, खाने का और ट्यूशन फीस का। तो क्या सीन है वहाँ का, F1 स्टूडेंट्स जो होते हैं दे कैन वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। ऑन कैंपस अलाउड है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग स्कूल टर्म ना। ऑन कैंपस का मतलब क्या होगा इस ऑन कैंपस मीन्स तुम लाइब्रेरी में काम कर सकते हो, कैंपस में कैफेटेरिया है, वहाँ पे कैंपस के ऑफिसेस होते हैं, वहाँ तुम काम कर सकते हो। तुम्हें पर आर के उस पर बेस पे तुम्हें पेमेंट मिलती है फिर, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप 9 कम्स द हेल्थ केयर गाइस। सो यूएसए हेल्थ केयर तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इट इज़ वेरी कॉस्टली। सो यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर द हेल्थ इंश्योरेंस, उसके लिए भी पहले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ कम्स गाइस स्टेप 10 विच इज़ द कल्चर। तो वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर कैसा है। तो एक शिफ्ट तो तुम्हें हो गई ना, क्योंकि यूएस का कल्चर गाइस बहुत ओपन है। तुम दिल्ली से जा रहे हो, तुम चिल करोगे ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम किसी और स्टेट से जा रहे हो जहाँ बहुत कंजर्वेटिव लोग रहते हैं। यूएस में तुम्हें बहुत ओपननेस दिखेगी भाई, तो तुम अडॉप्ट कर ही लोगे वैसे। कल्चर एंड लाइफस्टाइल में क्या है, तुम्हारे यूएस कैंपस आर ऑब्वियसली मल्टी कल्चर है गाइस, हर कंट्री से लोग आते हैं, चाइना, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत कंट्रीज के लोग मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे। तो इट्स अ मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट गाइस, इट्स अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट आई वुड से। कल्चर शॉक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। सो यूएस जनरली सेफ वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे भी सेफ है, बट स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द लोकल सेफ्टी नॉर्म्स, ध्यान रखो अपना उसमें। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट कैंपस सिक्योरिटी रिसोर्सेज, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप गाइस पेरेंटल कंसर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स शुड मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, ठीक है, ऐसे छोड़ मत देना बच्चे को। प्रिपेयर स्टूडेंट इमोशनली, जो पहली बार घर छोड़ के जा रहा है वो बेचारा, जा रही है बेचारी, ध्यान रखना है भाई। मेक श्योर किड्स अंडरस्टैंड बेसिक लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, वो तुम्हें आना चाहिए गाइस, तभी तुम सचिन कर पाओगे वहाँ पे, नहीं तो नहीं, वहाँ पे नौकर नहीं होते, ठीक है। हेल्थ केयर का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखो अपनी बॉडी का, एट्सेट्रा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज गाइज, लास्ट स्टेप इज कॉमन चैलेंजेस, क्या क्या होते हैं वहाँ पे। तुम जा रहे हो पहली बार घर से दूर, तो तुम ऑब्वियसली घर की याद आएगी ही ना, दैट इज़ होम सिकनेस, वो पहला चैलेंज है। सेकेंड इज़ द टाइम मैनेजमेंट, बैलेंसिंग स्टडी एंड वर्क। तुम पढ़ाई के बीच बीच में काम भी कर रहे हो ना साथ साथ में, तो तुम बैलेंस करने एक स्ट्रगल ही रहता है गाइस, यू नो। यहाँ से जॉब कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, कॉलेज जाना है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे, फाइनेंशियल प्रेशर डेफिनेटली होता ही है गाइस, महंगा कोर्स है गाइस, महंगी बातचीत है, तो तुम्हें भी खुद से निकालना पड़ेगा खर्चा। मेरा दोस्त भी गया था, उसने भी, बहुत दोस्त गए हैं मेरे यार बाहर, सब खुद से किया उन्होंने। स्टार्टिंग में ब्लू कलर जॉब्स करते हैं, बरिस्ता में काम किया है उसने, ठीक है, ओवर ईट्स में काम किया है, आज से रेट में अपना घर है उसका, वहाँ पे गाड़ी है अपनी बढ़िया, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट दीज थिंग्स टेक्स टाइम, इनिशियली स्ट्रगल होता है 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, बट उसके बाद तुम चिल कर सकते हो वहाँ पे। इतना कमा लो कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, अपनी फॉर्च्यूनर ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो यार, घर ले लो एक अपना, गिफ्ट दैट टू योर पेरेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, राइट। तो ये तो तुम्हारा था फॉर द यूएसए। अब यूएसए के बाद मैं और बनाऊंगा गाइस, लेट्स से मैं यूके का बनाता हूँ, जहाँ तुम ज़्यादा जाते हैं बच्चे, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया पढ़ाई करने के लिए, तो इसके मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तुम्हें अच्छा लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जस्ट लाइक दिस, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस, ठीक है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।